देख के वापस से जा रहे थे। नहीं, वो थोड़ा-सा वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो कभी-कभी लेट हो जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं टुडेज़ न्यूज़पेपर्स रनिंग vocab. ओके, नाउ एथनिक, वेल नोन, ETHNIC, ethnic, part of a speech, adjective, and Hindi meaning जातिवादी. Okay, and I think that no news need of any mnemonics about the ethnic. Okay, synonyms, racial, cultural, and tribal. Antonyms, non-rational, racial, and non-cultural, and multicultural. How to use in sentence? The community celebrated its ethnic diversity during the cultural festival. Next word, allegations. बोलते हैं ना allege, well known word होगा. Allege means क्या होता है? आरोप लगाना, charge without proof. ओके, उसी से बना है allegation, ALLAGATIONS. एलिगेशन भी बोल सकते हैं, एलिगेशन है. एलिगेशन मीन पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, हिंदी मीनिंग आरोप. ओके, सिनोनिम्स, एक्यूजेशंस, चार्जेस, क्लेम्स. एंटोनिम्स, डिनायल्स, exonerations, important word, EXONERATIONS, exoneration, and vindications. How to use in sentence? The politicians vehemently denial the serious allegations made against him. Now, here is a R silent. Okay, fish. FISSURES. How can use the mnemonics for this word? Fish. फिसल गया, अभी एक सेंस निकल रहा है यहाँ से. फिश को देख के हम फिसल गए, और क्या हो गया? जब फिसल जाएंगे तो ऑब्वियसली गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे तो बॉडी में क्रैक हो जाएगा. ठीक है, क्रैक हो जाएगा ना. तो फिशल्स आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, फिशेस. ओके, हियर इज अ आर साइलेंट, फिशेस. ठीक है, फिशेस को देख के फिसल गया और बॉडी में क्या हो गया? फिशेस हो गया, मीन्स दरारें आ गई. ओके, FISSURES, फिशेस. पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, हिंदी मीनिंग दरारें. नाउ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, cracks, splits, openings. Antonyms of the word, solidity, unity, and closure. How to use in sentence? The earthquake caused dangerous fissures in the foundation of the old building. Oath, well known, OATH. Oath means sapath. Parts of speech, noun. Synonyms of the word, pledge, vow, and promise. Antonyms, breach, violation, and disavowal. This is an important word. DISAVOWAL. Disavowal. Use in sentence, the president took the oath of office wearing to uphold the constitution. Now next word. Battalions, important word. In a spelling error, BATTALIONS. Battalions. Parts of speech, noun, meaning सेना इकाइयों का समूह. Synonyms of the word, troops, regiment, and squad. Squad, previous years means Saturdays. What power you saw this word, na? Squad means dal. Antonyms of the word, individual and civilian. Now, use in sentence. The battalions march in perfect formation during the military parade. Next, controversial. 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 Part of speech, adjective. Hindi meaning विवादास्पद. Synonyms of the word, debatable, disputable, and contentious. Important word. Yes. C CONTENTIOUS. Contentious means विवादास्पद. Antonyms of the word, uncontroversial, accepted, and conventional. Now, how to use in sentence? The author's controversial book sparked intense debates among literary critics. Now, next word, insurgent. INSURGENT. सर्जन कौन होता है? वेल नोन, पीपल ओवे रूल इन द हॉस्पिटल एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन. ओके,
हम सर्जन अगर बोले तो सर्जन कौन होता है? जो हॉस्पिटल के रूल को फॉलो करता है। और अगर हम इन लगा दिए, इन सर्जन, क्या हो जाएगा? जो उस रूल को फॉलो ना करे मतलब वो विद्रोही हो गया। आप ऐसे इस तरीके से निमोनिक्स लगा के लर्न कर सकते हैं। INSURGENT, इंसर्जेंट मीन्स क्या हो जाएगा? बागी, विद्रोही। Part of speech, noun and adjective, both you can use, okay, according the sentence. Now synonyms of the word: rebel, revolter, and dissenter. Important word: DISSENTER, dissenter. Now antonyms of the word: loyalty, conformist, and supporter. How to use in sentence? The insurgent group fought against the oppressive regime for their freedom. Suspension. When we read the suspension word, then resemble word suspend. Okay, suspend. माइंड में आ रहा है ना? एक ऐसा वर्ड हमको रिजेंबल हो रहा है, सस्पेंड। ओके, सस्पेंशन, SUSPEN, सस्पेंशन, सस्पेंड। सस्पेंड क्या होता है? निलंबित कर देना। लेकिन कैसा? टेम्परेरी रिमूवल होता है वो। अस्थायी रूप से जब हम किसी को रिमूव करते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सस्पेंशन। ओके, देन now you can use this mnemonics for learn this word. Okay, part of speech, noun, suspension, and synonyms of the word: pos, postponement, postponement, and interruption, and obeyance. Important word: abeyance, YANCE, abeyance. Okay, antonyms of the word: continuous, continuation, and resumption, and permanence. Now use in sentence: the students faced suspension for violating the school's code of conduct. Next, लेफ्टिनेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड। लेफ्टिनेंट को कैसे आप लोग लर्न कर सकते हैं? बस इसको तोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, इसको तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे? LIE, लाई, लाई मीन्स झूठ बोलना। यू, लाई, यू, टेन, एंट। ओके, ऐसे लर्न करिए, कभी नहीं भूलेंगे। लाई, LIE, लाई, यू, TEN, टेन, ANT, एंट। ओके, लाई, यू, टेन, एंट, लेफ्टिनेंट। ओके, now you can learn इसे this. Yes, मैम ये इसको यूज कर सकते हैं, झूठ बोले तुम 10 आंटी से। ant means चींटी, आंटी नहीं, ant, चींटी से। झूठ हाँ मैम, बोले 10 चींटी। चींटियों से। हाँ, okay. चींटी नहीं बोल Now करके यहाँ पर हम आंटी लगा दिए। नहीं, आंटी लगाएंगी मैम ना तो फिर आप यूज करते समय इंग्लिश में ना तो भूल जाएंगी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर ऐसे होते हैं। ठीक है, लाई, यू, हम्म, टेन, एंट, 10 चींटियों से आपने क्या बोला? झूठ बोला। ओके, नाउ कैन यूज दिस टेक्निक, लर्न फॉर दिस लेटर। ओके, this word, lieutenant. Now part of speech, noun, meaning lieutenant, well known. Synonyms of the word: deputy, assistant, and subordinate. Antonyms: superior, commander, leader. Use in sentence: the lieutenant led the platoon into the battlefield with courage and strategy planning. Next, buffer. Well known. Buffer क्या होता है? Buffering, बहुत अच्छे से पता होता है। बाधा। ओके, BUFFER, बफर। आजकल जो बफर सिस्टम है आप उससे लर्न कर सकते हैं, एक प्रकार से बाधा है। अब प्लेट ले लेके घूम रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, तो खाने में भी बाधा उत्पन्न होती है। बफर आप लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन एंड वर्ब। मीनिंग: बाधा। ओके, सिनोनिम्स: क्वेश्चन शील्ड, बैरियर। एंटोनिम्स: डायरेक्ट एक्सपोजर एंड vulnerability. How to use in sentence? The forest acted as a buffer, protecting the village from the full force of the storm. Now sensitive, well known, बहुत संवेदनशील बोलते हैं ना, very sensitive area. SENSITIVE, sensitive. Part of a speech, adjective, meaning संवेदनशील. Synonyms: responsive, delicate, and perceptive. Antonyms of the word: insensitive, numb. Important word: yaniyambinam, and indifferent. How to use in sentence? The artist's work reflects a sensitive understanding of human
emotions. Now, prevailing. Pre means क्या होता है? पहले. ऐसे लर्न कर सकते हैं, जो पहले की चीजें प्रचलित हो वही होता है प्रिवेलिंग. ओके. PREVAILING. Prevailing. Part of speech adjective. प्रचलित. Okay. Next, synonyms of the word dominant, common, current. Antonyms of the word uncommon, unpopular, dying. Use in sentence: the prevailing trend in fashion often influences people's clothing choices. Now, uncertainty. इट्स अ कॉमन वर्ड. जहां जहां देखिए आप लोग को पता है बहुत कॉमन वर्ड है, वहां पे कोई निमोनिक की जरूरत नहीं है. क्यों? एग्री आप लोग? जी. यस मैम. ओके. मैम अनसर्टेनिटी. लेकिन प्रिवेलिंग को अगर प्रचलित कहते हैं, मतलब इसे इसका मीनिंग है प्रचलित करना, तो इसमें इसे हाँ, कॉमन हाँ. भी दिया है. जी 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 मैम, फिर से आप बताइए, समझ नहीं पा रहे हम. मैम मैम मेरा कहने का मतलब जैसे प्रिवेलिंग का मीन्स होता है प्रचलित होना, नहीं फेमस होना, तो इसमें सिनोनिम दिया है कॉमन, करेंट या डोमिनेंट. कॉमन, करेंट, डोमिनेंट. देखिए इसका जो डिफिनीशन होता है मैम, प्रिवेलिंग डिस्क्राइब समथिंग दैट इज अ करेंट, ओके, आर डोमिनेंट एट द पर्टिकुलर टाइम, दैट्स कॉल्ड प्रिवेलिंग. ओके. नाउ कैन यू यूज दिस टाइप synonyms फॉर प्रिवेलिंग. ओके मैम. Okay. Now, uncertainty. 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 Part of speech. Noun. अनिश्चित. Well known. Synonyms. Ambiguity. Doubt. Indecision. Now, antonyms. Certainty. Confidence. And clarity. Use in sentence. The economic downturn created a sense of uncertainty among investors. Next word, democracy, well known. DEMOCRACY. डेमोक्रेसी. नाउन. देखिए इजी वर्ड तो दिखते हैं, यही एग्जाम में जब आ जाते हैं तो कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट करते हैं? यस पढ़ा था कि सी पढ़ा था? यस सी, यहीं पर अक्कड़ बक्कड़ चालू हो जाता है. क्यों? होता नहीं है कि यस पढ़ा सी पढ़ा, अब इसी अक्कड़ बक्कड़ में सब गड़बड़ हो जाता है. यस मैम, ऐसे ठीक बहुत है. जैसे रिसीव हुआ, बिलीव हुआ, इसमें सी आई हाँ होगा जी. कि सी ई आई होगा. यस, तो इसमें इसलिए ना इस चीजों को बहुत हम लोग लाइटली लेते हैं, लाइटली नहीं लेना है. जो वर्ड इजी है उसको भी इम्फेसाइज करके लर्न किया जाए, तो हम लोगों को एग्जाम तक ले जाने में आसानी होगी. नहीं तो बस अक्कड़ बक्कड़ ही करते रह जाएंगे हम लोग. ओके. DEMOCRACY. डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र. पार्ट ऑफ स्पीच. नाउन. नाउ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिपब्लिक, सेल्फ गवर्नमेंट, मेजॉरिटी रूल. Antonyms of the word autocracy and dictatorship and totalitarianism. Okay, use in sentence: in a democracy, citizens have the power to elect their representative. Next, consensus. 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 कॉन्सेंसस मीन्स क्या होता है? सामंजस्य बनाना, आम सहमति बोल सकते हैं इसको हिंदी में. पार्ट ऑफ स्पीच. नाउन. सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एग्रीमेंट, यूनिटी, accord. नाउ एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डिसएग्रीमेंट, डिसेंट. इंपॉर्टेंट वर्ड. DISSENT. बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये भी वर्ड. नेक्स्ट, डिस्कॉर्ड. हाउ टू यूज इन सेंटेंस? द कमेटी. कमेटी COMMITTE. ओके, डबल एम भी मिलेगा, डबल टी भी मिलेगा, डबल ई भी मिलेगा. Reached a census, sorry, consensus on the proposed changes to the policy. Next word, opposition. OPPOSITION. अब देखिए यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है. TION की जगह पे वहां पे SION दिमाग में चिपकने लगता है. ठीक है. अपोजिशन. पार्ट ऑफ स्पीच. नाउन. मीनिंग विरोध. सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रेजिस्टेंस, contradiction and adversaries. Antonyms of the word support, agreement and alliance. How to use in sentence? The opposition party criticized the government's policies during the parliamentary debate. Next word, economic. 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 Part of speech.
adjective, meaning आर्थिक. Synonym of the word financial, monetary, and fiscal. Important word. FISCAL. Fiscal. Okay. Now antonyms of the word non-financial, and non-monetary and non-material. Use in sentence. The economic downturn affected businesses. Business की भी spelling ध्यान रखिएगा. दिमाग में डबल एस चिपकता है, ठीक है, तो ये डबल एस नहीं होगा. यहाँ क्या होना चाहिए? BUSI, यानी it double SES, businesses, and led to job losses. Okay. Now, do you have any problem? Then we discuss here. Yes. मैम थैंक यू. Yes, welcome everyone. Thank you. Welcome everyone. सबसे पहले आप सभी लोगों को जो है आभार कि लगातार जो है कुछ साथी हैं जो जुड़े हुए हैं और कई दिन से हम देख रहे हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं. इससे अब आपके दिमाग में आएगा भाई साहब आभार आप काहे व्यक्त कर रहे हैं. आभार हम इसलिए व्यक्त कर रहे हैं कि जब ज्यादा जितने लोग जुड़ते हैं तो एक हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें काम करने में जो है इंटरेस्ट पैदा होता है. वो भले जो है आप अपने हित के लिए जुड़ते हैं लेकिन कम से कम उससे एक मनोबल वृद्धि हमारी जरूर होती है. हमने 4-5 लोगों से स्टार्ट किया था, आज लगभग जो है 14-15 के 13 के करीब में लोग जुड़े हुए हैं. ये एक मनोबल वृद्धि करते हैं. और जो आपको वोकैब दी जा रही है, ये वोकैब का काम अगर एक व्यक्ति ये सोचो आपको कितना समय लगेगा. न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, मार्केट से कोई न्यूज़पेपर आप लीजिए, ये वैसे हिंदुस्तान टाइम्स का है हमारा, हिंदुस्तान टाइम्स की ही बात कर लो तो उसको पेपर को खरीदो जो भी 15-20 रुपए 10 रुपए का मिलता हो, फिर उसको जो है कम से कम आधा से 40 घंटा 40 मिनट तक के उसको पढ़ो, सारी वोकैब को अंडरलाइन करो और फिर वोकैब को जो है आप एक कॉपी पे लिखो. कॉपी पे लिखने के बाद उसका गूगल से सर्च करो, उसका हिंदी ट्रांसलेट करो, फिर उसके सिनोनिम जो है सर्च करो, एंटोनिम सर्च करो, फिर जो है उसका सेंटेंस में यूज लिखो, तब जाकर के एक मीनिंग आपका पूरा होगा. इस तरह से हम आपको कम से कम पर डे मिनिमम 15 से 20-25 मीनिंग जो है पर डे दे रहे हैं, कभी कभी तो 30 मीनिंग हो जा रहे हैं. ये मीनिंग का कम से कम 2 से 2.5 घंटे का काम है. 2 से 2.5 घंटे तक लगातार एक बंदा अगर काम करे तो कम से कम 25 से 30 मीनिंग पे काम जो है हो पाएगा. वो काम आप लोगों को 10 से 15 मिनट में यहाँ पर मिल जा रहा है. और ये वोकैब जो है आपकी न्यूज़पेपर वाली, ये काम कैसे आएगी? आप जो कंप्रहेंशन पेपर में आता है आपका, चाहे नंबर फिलिंग का हो, चाहे पैसेज का हो, या जो है समस्यात्मक क्वेश्चन हो, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन में वोकैब आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये रनिंग वोकैब है जो इस समय पूरे वर्ल्ड में कन्वर्सेशन में वर्ड लैंग्वेज यूज की जा रही है. वही लैंग्वेज आपको जनरली पेपर में देखने को मिलती है. उसमें से हाँ कुछ हार्ड एंड टफ वर्ड लिटरेरी वोकैब के दे दिए जाते हैं, तो उसका एक अलग क्वेश्चन बनते हैं. तो लिटरेरी वोकैब हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो ये लगातार आपको मिल रहा है. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप जुड़े रह सकते हैं. दूसरी बात एक ये है, अगर आप चाहते हैं कि ये लगातार चीजें और बढ़िया से होते रहे, तो जो लोग YouTube पे देख रहे हैं मुझे, तो वो भले लाइक और सब्सक्राइब कुछ ना करें, लेकिन इतना जरूर करें, आप अपने 2-3 साथियों को बता दीजिए कि भाई साहब एक सेशन ऐसा है जहाँ पे फ्री में चीजें हो रही हैं. और फ्री में चीजें लोगों के दिमाग में बन जाता है, फ्री है तो फिर सब कुछ बेकार ही होगा. लेकिन यहाँ से चीजें आप देखने के बाद अगर आपको लगता है कि बेकार है चीजें, तो फिर आपको जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो कंपटीटर है उसके लिए समय की बड़ी कीमत है. तो हम आपके समय का बहुत बढ़िया यूटिलाइजेशन चाहते हैं और एक टारगेट हमने बना लिया है कि आगे आने वाले एग्जाम में कम से कम हमारे सुपर 30 लोग हों. उस टारगेट पे हम काम कर रहे हैं. उस टारगेट पे कितना हम आगे सफल हो पाते हैं आप लोगों के सहयोग पे भी डिपेंड करता है. हमारी एक टीम का एक टारगेट है कि आगे आने वाले एग्जाम में कम से कम हमारे सुपर 30 जो है लोग सफल हों, और हम उसमें जितना मेहनत हो सके करें, क्योंकि आपका मेहनत अगर कर देंगे, आपकी सफलता के लिए मेहनत करेंगे, तो भाई साहब भला तो हमारा वैसे भी हो जाएगा. तो ये एक अपना निजी स्वार्थ इसको कह सकते हैं आप, लेकिन इस स्वार्थ में आपका हित भी
बहुत बड़ा छिपा हुआ है। जनरली आप देखे होंगे इलाहाबाद की जितने कोचिंगे हैं, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सब लोगों ने आगे आने वाले टीजीटी का एग्जाम, जो कि लगभग माना जाता है कि जो इलेक्शन है उसके बाद 1 या 2 महीने के बाद हो जाए, मतलब जून जुलाई अगस्त तक के पॉसिबिलिटीज हैं होने की, उसके संदर्भ में सबके बैच लॉन्च हो गए। 5,000, 10,000, 15,000 इस तरह के बैच की सबकी फीस है अपनी अपनी जो भी हो। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ में जो लोग जुड़े रहे उनकी भी एक बेहतर तैयारी हो, लेकिन कैसे हो? आज जुड़ेंगे कल नहीं जुड़ेंगे ऐसे संभव नहीं है। हमें भी जो है मोटिवेट करिए, आप भी मोटिवेट रहिए, और आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी की शुरुआत जो है अभी से कर दीजिए। 2-3 महीने जो ये बचे हुए हैं, जो लोग, हम ये मान के चल रहे हैं जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सब जो है किसी न किसी कोचिंग से जुड़ के पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग में बार बार पैसा नहीं दे सकते। 3 साल तक 4 साल तक पंचवर्षीय योजनाएं बना दे रहा है सरकार ये एग्जाम को, तो बार बार हम कहाँ 8 से 10,000 रुपए देते फिरेंगे, 5,000 6,000 रुपए। तो सब लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आप उन्हीं सेल्फ स्टडी करने वालों तक के हमारे ये संदेश को पहुंचाइए। भाई साहब यहाँ से जुड़िए, और यहाँ से जुड़ने के बाद जो है आपका जितना भी सिलेबस आपने कवर किया है, चाहे जिस कोचिंग से कवर किया हो, पूरा का पूरा सिलेबस हम रिवाइज यहाँ पर कराने वाले हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल रिवाइज कराने वाले हैं, और यूनिक चीजें मिलेंगी। और 2-3 दिन लगातार जुड़िए, यूनिक चीजें न मिले तीसरे दिन कतई न जुड़िए। आप अपना जहां पे समय उचित समझते हैं वहां पे लगाइए, क्योंकि आपके लिए समय बहुत कीमती है आगे आने वाले एग्जाम के दृष्टि से। तो लगातार जुड़े रहिए और हमारी बात लोगों तक के पहुंचाते रहिए। अगर ये चाहते हैं, वैसे तो मैं यहाँ पर टीचर स्टूडेंट कोई है नहीं, सब पैरेलल हैं, सब जो है रेसिप्रोकल हैं, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति में एक गुरु और गुरु इसी क्या हिसाब से अगर चीजें देखी जाए तो गुरु दक्षिणा होती है। तो देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी इस दुनिया में फ्री में नहीं है। आप भी फ्री में कोई चीज नहीं लीजिए, और ना ही मैं फ्री में आपको कुछ देना चाहता हूं। आपसे भी चाहता हूं कि हम आपसे कुछ काम करा लें, और काम यही करा लें कि 2-4 लोगों तक अपनी बात को पहुंचा दें, क्योंकि जो नए लोग हैं उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक के भी बात हमारी पहुंचाइए आप। और इसे आप हमारे इस काम करने के एवज में पे आउट मान लीजिए। आप फ्री नहीं जुड़े हैं हमसे, और ना ही हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, बशर्ते हमारी बात को कुछ लोगों तक के पहुंचाइए। बस इतना ही जो है आप लोगों से उम्मीद हो, यही जो है इस चीज को ही गुरु दक्षिणा मानेंगे। ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग? Am I audible? यस सर, सुने। जी, तो इस अपील को आई होप कि आप सब लोग सुन रहे होंगे। सभी लोग भले जी ना सर। फॉलो करें, लेकिन कुछ लोग जरूर फॉलो करेंगे, ये एक अपना मानना है। दिखने लगी स्क्रीन हमारी? यस सर। जस्ट वेट। देखिए, हम लोग जो है न्यू क्लासिकल एज पढ़ रहे हैं। न्यू क्लासिकल एज में जो है न्यू क्लासिकल एज को 3 भागों में बांटा गया। पहली है रेस्टोरेशन पीरियड और एज ऑफ ड्राइडन, जो कि 1660 से लेकर के 1700 तक के चलती है, और इस एज को जो है हम लोग पढ़ चुके, ये कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट जो एज जो है हम पढ़ने वाले हैं, एज ऑफ पोप और द ऑगस्टन एज, जो कि 1700 से 1745 तक के जो है ये मानी जाती है। इसका रेन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये 45 ईयर का है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, मतलब पीरियड पूछा जा सकता है, 45 ईयर का है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एज ऑफ पोप क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके प्रोमिनेंट राइटर कौन कौन से हैं, इसको जो है ऑगस्टस एज क्यों माना जाता है,
और इसमें क्या हिस्टोरिक घटनाएं हुई थी शार्ट में, और लिटरेरी जो फैक्टर हैं ये हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और कौन से राइटर थे, उनके कौन सा फेमस वर्क है, और कौन कौन से लिटरेरी जनरा उस पीरियड में यूज किए जाते थे। और इसके बाद हम उसी दिन या फिर जिस दिन हम इसको फिनिश करते हैं पूरे एज को, तो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जितना हम पढ़ चुके हैं इसी पे आधारित जो है एक हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसका मानना हमारा है कि अगर इस पर्टिकुलर एज से कोई क्वेश्चन एग्जामिनर बनाए तो फिर यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ से क्वेश्चन वो बना सकता है। तो मान के चलते हैं कि अगर हम जैसे रेस्टोरेशन एज पढ़ी तो लगभग अभी पिछली बार 30 क्वेश्चन की सीरीज हमने वो टेस्ट किया था, और 30 क्वेश्चन में मानना था कि अगर रेस्टोरेशन एज से कोई क्वेश्चन एग्जामिनर बनाए तो इस 30 क्वेश्चन से ज्यादा आगे बनाने की उम्मीद बहुत कम है या ना के बराबर है। मान के चलो कि इसी में से हो सकता है कि बना दे, इससे ज्यादा आगे नहीं जाए। इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर को लेकर के हमने एक टेस्ट अपना किया। तो आज जो है हम उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, एज ऑफ पोप पढ़ते हैं, और एज ऑफ पोप के बाद जो है हम इस पे जो है आधारित टेस्ट करेंगे। आज अगर समय हो जाता है तो आज, नहीं तो फिर जो है जिस दिन हम इसको फिनिश करते हैं उस दिन जो है हम इसमें टेस्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन का स्टार्टिंग हो रही है हमारी एज ऑफ पोप से। एज ऑफ पोप जनरली ये है किसका सब कैटेगराइज किया गया है, किसका, नियो क्लासिकल का। तो अगर नियो क्लासिकल एज ऑफ पोप के टर्म्स अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जो टर्म्स जो है एज ऑफ पोप के हैं वही टर्म्स जो है न्यू क्लासिकल के हैं, या यूं कह सकते हैं न्यू क्लासिकल के जो टर्म है वही जो है टर्म जो है एज ऑफ पोप के हैं, और इसी को जो है हम ऑगस्टन एज जो है कहते हैं। तो इन सब चीजों को, छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, द एज ऑफ पोप रिफर्स टू द लिटरेरी पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी। सबसे पहले यही चीज ध्यान दे लीजिए, किस सेंचुरी से बिलोंग करता है ये, 18th सेंचुरी से। इंग्लैंड dominant by the work and the influence of the renowned poet Alexander Pope। जैसे कि हम अभी रेस्टोरेशन पीरियड में पढ़ रहे थे तो वहां पर जो है ड्राइडन जो है बहुत फेमस थे, एक डोमिनेंट पोइट जो है वहां पर जो है ड्राइडन थे, तो एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जाना जाता था। ये जो है एज ऑफ पोप जो 1700 से 1745 तक के है, इसमें जो है अलेक्जेंडर पोप जो है बहुत फेमस उस समय के पोइट थे, तो इसे जो है पोप की एज के नाम से जाना जाता है। पोप हु लिव्ड फ्रॉम 1688 टू 1744। हालांकि ये जो है हिस्टोरिक पॉइंट आप उसे जानते रहे, लेकिन पीजीटी और जीआईसी के लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। पीजीटी में यहाँ तक के पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए। was one of the most influential writer of his time and played a crucial role in shaping the literary landscape of this era. The age of pop is often associated with the literary movement known as neoclassical, characterized by the adherence to the classical principle of ideas। हमने जैसा कि पहले बताया कि ये जो है एक सब पार्ट है किसका, न्यू क्लासिकल का, उसी के अंतर्गत जो है रख करके हम इसको पढ़ते हैं। आगे जो पॉइंट हमारा है, व्हाई द एज ऑफ पॉप इज ऑफन नोन एज द ऑगस्टन एज। हम इसे ऑगस्टन एज क्यों मानते हैं? द टर्म एज ऑफ पोप इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द ऑगस्टन एज to refer the same period in English literature. The reason for this connection is rooted in the influence and characteristics of Alexander Pope's work, which exemplified the literary idea and values of the era. This term, देखिए जो अलेक्जेंडर पोप थे, तो जो इनके वर्क थे, इन वर्क्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके आधार पर जो है इसे एज ऑफ ऑगस्टन एज जो है इसे कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ऑगस्टन एज ड्रॉन इट्स द इंस्पिरेशन फ्रॉम द रेन ऑफ द रोमन एम्परर ऑगस्टस। एक रोमन जो है एम्परर थे ऑगस्टस, उनके पीरियड के जो लिटरेरी फीचर थे, अ पीरियड नोन फॉर इट्स स्टेबिलिटी, कल्चरल अचीवमेंट्स एंड रिवरेंस फॉर क्लासिकल आइडियाज,
तो उस समय के जो आइडियाज थे, जो उस समय के फीचर थे, अलेक्जेंडर पोप जो है इस पीरियड में, किस पीरियड में, नियो क्लासिकल पीरियड में उनको रिवाइवल करने की कोशिश कर रहे थे। किसके? जो रोमन इंपरर ऑगस्टस थे उनके पीरियड का। तो इसीलिए जो है ये माना जाता था कि ये जो एज है ये ऑगस्टन एज भी है, या यूं कह लीजिए ऑगस्टन एज के टर्म्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा हो नहीं पाया। इन्होंने रोमन के टाइम पे जो उस समय के एम्परर थे, तो जो समय के राइटर थे, जैसे आपने एक पढ़ा होगा वर्क, उसका नाम है बैटल ऑफ माउस एंड फ्रॉग एंड माइस करके कोई है, होमर का है शायद। तो उसको जो है अच्छे से इमिटेट किया यहाँ पर जो है अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक में। तो वैसा ही चीजें लोगों का माना जाने लगा, जितने भी राइटर थे उस पीरियड में वो सब वही चीज इमिटेट करते थे। तो इसीलिए जो इसको एज ऑफ ऑगस्टन या ऑगस्टन की एज भी से कहा जाता है। आगे इंग्लिश राइटर ऑफ द अर्ली 18th century sought to the emulate the virtue and values associated with the Augustan reign, particularly those found the classical Roman literature। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने बताई थी भी जब हमने नियो क्लासिकल पढ़ना चालू किया था कि नियो क्लासिकल में क्या नियो हो रहा है। देखो, क्लासिकल मीन्स पौराणिक चीजें जो एज इट इज पहले की थी उनको डिपिक्ट करना क्लासिकल हो गया, लेकिन ये दूसरे मतलब नए तरीके से डिपिक्ट कर रहे थे, तो ये नियो क्लासिकल हो गया। अच्छा, नियो क्लासिकल इमिटेट किसको करता था? ग्रीक एंड रोमन कल्चर को इमिटेट करता था। लेकिन ग्रीक और रोमन कल्चर में दो अगर आ जाएं, वैसे तो दो आने नहीं चाहिए, जनरली एक ही आना चाहिए, लेकिन अगर दोनों आ जाएं तो ये ध्यान रखिएगा रोमन को आप प्रेफरेंस दीजिएगा। ये रोमन को जो है इमिटेट करते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर जो है ऑगस्टन एज पड़ी है, तो रोम को ही प्रेफरेंस जो है देना है। और अगर रोमन नहीं है और ग्रीक दिया हुआ है तो ग्रीक पे जाएंगे कि न्यू क्लासिकल पोइट्स या ऑथर्स इमिटेट द लिटरेरी जनरा ऑफ रोमन या ग्रीक, तो वहां पर रोमन ही सबसे अप्रोप्रिएट होगा। अलेक्जेंडर पोप एज द वन ऑफ द सेंट्रल फिगर ऑफ दिस पीरियड embodied the literary spirit and the aesthetic principle of the Augustan age. His poetry demonstrated commitment to the new classical idea with the focus on the किस चीज पे जो है जो एज ऑफ पोप था, जो एज है वो किस चीज पे फोकस करती थी? ध्यान देने वाली बात है, फोकस ऑन रेशनैलिटी। किस चीज पे? रेशनैलिटी पे। ये फीचर से क्वेश्चन जब बनाता है तो बहुत काम आने वाले हैं आपके। ऐसा नहीं पूछने वाला आया जाकर के कि भाई साहब एज ऑफ पोप का पीरियड है, 2-3-4 ऑप्शन दे दिया, वहां से आपने पकड़ लिया 1700-1745 टिक मार दिया, हो गया। अगर क्वेश्चन अब बनेंगे 2021 का पैटर्न देख लीजिए, तो आपके फीचर से क्वेश्चन बन रहे हैं, और फीचर से जब क्वेश्चन बनेंगे तो ये माइन्यूट चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। 4 विकल्प दे देगा आपको, उनमें से कौन सा कहेगा कौन सा नहीं है या कौन सा है, या फिर चारों दे करके देगा 1 2 3 सही है, 2 3 1 सही है, ऐसे 1 2 3 4 दोनों चारों सही है। तो ये चीज ध्यान रखिए, रेशनैलिटी पे फोकस किया जा रहा था। किसमें? एज ऑफ पोप में। क्लैरिटी एंड द ऑर्डर, पोप्स स्किल्स यूज द हीरोइक कपलेट। इनका तो जो है हीरोइक कपलेट, ड्राइडन, ये दोनों लोग बहुत हीरोइक कपलेट के मास्टर थे, बहुत बढ़िया सा हीरोइक कपलेट का यूज किया। हिज मास्टरी ऑफ द सटायर, लेकिन ये सटायर भी बहुत अच्छा करते थे, मतलब इस एज का सटायर भी एक फीचर है। हीरोइक कपलेट ज्यादा यूज होता था, इस एज का एक फीचर है। रेशनैलिटी और क्लैरिटी ज्यादा थी इस एज के लिटरेचर में, ये इसका फीचर है। एंड हिज एंगेजमेंट विद द मॉरल एंड फिलोसफिकल, यहाँ पर मॉरलिटी और फिलोसफी की बातें की जाती थी, ये भी इसका एक फीचर है। अब आगे हम चलते हैं एज ऑफ पोप के विषय में। ड्यूरिंग द एज ऑफ पोप न्यू क्लासिकल एस्थेटिक वैल्यूज प्रिवेल्ड इन लिटरेचर। Pope's poetry exemplified the new classical style marked by its formal structure, precision, balance and use of heroic couplet। ये एक फीचर है। The drew inspiration from the ancient Greek and Roman culture। ये देखिए, ये है दोनों चीजें, ग्रीक और रोमन दोनों कल्चर का इमिटेशन है यहाँ पर, लेकिन अप्रोप्रिएट अगर दोनों में से किसी एक पे अगर आपको जाना होगा तो रोम पे जाइएगा, क्योंकि रोमन के नाम से ही ऑगस्टन एज पड़ा हुआ है। पोप्स वर्क सच एज एसे ऑन क्रिटिसिज्म, रेप ऑफ द लॉक
and Duncian showcased his wit, satire, and mastery of poetic craft. Age of Pope is also notable its emphasis on moral instruction. Moral instruction पे यहाँ पर जोर दिया जाता था. Pope's influence extended beyond his poetry. He was a prominent figure of his literary circle of this time. Other writers of the period such as Jonathan Swift, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आगे पढ़ेंगे इनको, सैमुअल जॉनसन, ये सब कंटेम्प्रेरी है, इसी एज से बिलोंग करते हैं. Which writer is not belong to age of Pope? ऐसा क्वेश्चन बना सकता है. या कौन सा राइटर इसमें से नहीं बिलोंग करता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है. जोनाथन स्विफ्ट है, सैमुअल जॉनसन है, जोसेफ एडिसन, इनको एलटी ग्रेड में आप पढ़ेंगे. Made significant the contribution of the literature of the time, each of their own distinct style and themes. The Augustan Age. The Augustan Age in English literature refer to the period of culture, literary flourishing during the early 18th century, named after the reign of Roman Emperor Augustine, known for its stability, order, intellectual. The term Augustan is used for denote the influence of classical ideas, particularly those ancient Rome, on the literature and culture of the time. अब आगे का जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वो है द ऑगस्टन एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल डिस्टिंग्विश्ड फीचर. अब वो कौन कौन से फीचर थे जो बहुत महत्वपूर्ण है और उनको एक एक को इलिबरेट करके हमें जानना चाहिए. हालांकि टीजीटी में जो है इलिबरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, हाँ, लेकिन अगर जीआईसी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स का इलिबरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्योंकि हम यहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसी के हिसाब से चीजों को हम पढ़ते हुए चलेंगे. बाकी ये चीजें जो है आपको तैयारी जोन पोर्टल पर जो है एक ई बुक में ई फॉर्म में अवेलेबल मिल जाएंगी, वहां से चीजों को आप देख सकते हैं. फीचर है नेक्स्ट, न्यू क्लासिकल एस्थेटिसिज्म. द लिटरेचर ऑफ द ऑगस्टन एज एम्ब्रेस न्यू क्लासिकल आइडियाज. आगे है मॉरल एंड सटारिकल राइटिंग. बस इतना ही ध्यान रखते चलिए कि ऑगस्टन एज का फीचर क्या है. न्यू क्लासिकल एस्थेटिसिज्म पूछ लिया जाए, ऑगस्टन एज. मॉरल एंड सटारिकल राइटिंग, ऑगस्टन एज, एज ऑफ पॉप. पब्लिक स्फेयर एंड पीरियोडिकल एसेस, जैसे जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, इनके जो पीरियोडिकल आ रहे थे वो सब इसी पीरियड में आ रहे थे. पीरियोडिकल्स का पीरियड अगर पूछ लिया जाए तो न्यू क्लासिकल में एज ऑफ पॉप. अगला स्पेक्टेटर इडिटेड बाय, अभी जो बता रहे थे, जोसेफ एंड रिचर्ड स्टील. टेटलर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, ये भी उसी पीरियड से है. इसी पीरियड में जो है, अभी जब हम थोड़ा हिस्टोरिक बैकग्राउंड जो इसको पढ़ेंगे तब चीजों को हम और क्लियर करेंगे कि 4 व्हील नॉवेलिस्ट इसी में आपको देखने को मिलेंगे. इम्फेसिस ऑन रीजन एंड नेशनैलिटी और पोएटिक फॉर्म, इसमें जो है जो यूज किए जा रहे थे उनमें हीरोइक कपलेट, राइमिंग्स बहुत ज्यादा जो है यूज की जा रही थी. एम्बिक पेंटामीटर का बहुत अच्छे से यूज हुआ है यहाँ पर. इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेस एंड क्रिटिसिज्म, यहाँ पर बिटी एक डायलॉग फॉर्म में जो वर्क लिखे जाते थे ज्यादातर वो सब डायलॉग फॉर्म में होते थे, वो बड़ी बिटी डायलॉग हुआ करते थे. और क्रिटिसिज्म भी बहुत अच्छा इस एज में लिखा गया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म. व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एज, ये थोड़ा जान लेना जरूरी है हमारे, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे वो तो बनते हैं लिटरेरी एज के, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आयोग बना दे रहा है जो हमने नेट का फॉर्म देखा है और या हायर का देखा है, तो लिटरेरी जो फीचर है उनको रेन से जोड़ दे रहा है. मतलब उस समय राजा कौन था, उस समय की प्रमुख घटना से जोड़ के दे रहा है. तो अगर कोई प्रमुख घटना हमको नहीं पता है और सिर्फ लिटरेरी फीचर पता है तो फिर मामला हमारे लिए टफ हो जाता है कि पता नहीं है किस घटना की बात कर रहा है. तो थोड़ा सा जो है हमें घटना के विषय में भी जान लेना चाहिए. देखो इसमें सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर 1702 में, थोड़ा हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, 1702 में क्वीन एन आती है. क्वीन एन का जो है रेन होता है इसी एज में, एक महत्वपूर्ण घटना होती है. दूसरा चीज एक है कि
यहाँ पर एक होता है स्पेनिश वार। स्पेनिश वार ये होता है शायद, हाँ ये भी 1702 में, इसी ईयर स्पेनिश वार भी होता है। और एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि एक आता है यूनियन एक्ट। स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड यूनियन एक बन जाता है, और ये आता है शायद 1707 में। वो इसी पीरियड की घटना है, तो ये भी महत्वपूर्ण हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात है। और एक जो है थोड़ा टीजीटी में भले न पूछा जाए, लेकिन जीआईसी मेल्स में पूछा जा सकता है, या यूजीसी नेट का जो है क्वेश्चन बन सकता है कि कॉपीराइट लॉ, एक जो कॉपीराइट जो होता है ना, ये फला जो हमारी जो वर्क है इसका कॉपीराइट हमारे पास रहेगा, तो कॉपीराइट एक लॉ आया था, और कॉपीराइट लॉ आया था 1710 में। वो भी जो है इस एज की बहुत महत्वपूर्ण घटना जो है मानी जाती है। और इसके अलावा जो है हालांकि वो तो लिटरेरी है, जैसे कि फोर व्हील नॉवेलिस्ट जो आते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे उनकी, वो भी इसी पीरियड में आते हैं। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द लेट 17th century, early 18th century in England were marked by the significant political, social and cultural transformation. The Glorious Revolution of the 1688 saw the overthrow of the James II and the assassination of William III and Mary to the throne. This event established the constitutional monarchy. अभी हमने कल जब पढ़ा था तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किसने स्थापित किया? तो विलियम थर्ड और मेरी सेकंड ने किया था। एंड द पार्लियामेंट्री पावर यूजिंग द पीरियड ऑफ दिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ ए मिडिल क्लास सोसाइटी। ड्यूरिंग द टाइम इंग्लैंड एक्सपीरियंस द इकोनॉमिक एक्सपेंशन and trade growth, leading the emerging of the response prosperous mercantile classes। मतलब काफी जो है चीजें वहां पर डेवलप होती, और जो अर्बनाइजेशन हो रहा था, शहरीकरण ज्यादा जो है उस समय हो रहा था। द एज ऑफ इनलाइटमेंट एंड फिलोसफिकल चीजें ज्यादा हो रही थी, इंटेलेक्चुअल जो है चीजें मूवमेंट वहां पर ज्यादा हो रही थी, इसलिए जो है इसे एज ऑफ इनलाइटमेंट भी कहा जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। द रेन ऑफ क्वीन एन 1702 1714 एंड किंग जॉर्ज फर्स्ट। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे, जो एज अभी पढ़ा हमने रेस्टोरेशन एज, जेम्स सेकंड तक की, नहीं विलियम सेकंड, और जो उनको थी कौन सी क्वीन मेरी, अभी जो ऊपर पढ़े हैं मेरी और विलियम थर्ड तक के, तो उनका जो विलियम थर्ड, हाँ विलियम थर्ड अभी तो पढ़े हैं हम लोग, विलियम थर्ड मेरी सेकंड, सही। इनके जो रेन तक के जो हम पढ़े हैं, तो ये जो डायनेस्टी हमारी मानी गई है, तो इस डायनेस्टी को के बाद जो डायनेस्टी चालू हो रही है ये इनसे क्वीन एन से। तो क्वीन एन की जो डायनेस्टी है होनोवेरियन, इसका नाम जो है ये डायनेस्टी आपसे पूछी जा सकती है, हैनोवेरियन डायनेस्टी जो है ये स्थापित करती हैं। कौन? क्वीन एन जो है हैनोवेरियन डायनेस्टी स्थापित करती है। अच्छा, इसके पहले जो डायनेस्टी थी कौन थी जो चल रही है इनके पहले, मतलब जो विलियम वाली, किसी को आइडिया है? मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा इस समय। स्टुअर्ट, यस, स्टुअर्ट डायनेस्टी। जो ये विलियम और ये मैरी थे, ये सब स्टुअर्ट डायनेस्टी थे। स्टुअर्ट डायनेस्टी, ये दोनों डायनेस्टी हैं। डायनेस्टी क्या मतलब? वही सम्राट, जिसको क्या बोलते हैं, एक राजा, राज्य परिवार, तो उसे डायनेस्टी यहाँ पर बोलते हैं। तो वो स्टुअर्ट डायनेस्टी खत्म होती है और हैनोवेरियन डायनेस्टी जो है ये स्टार्ट होती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हैनोवेरियन डायनेस्टी रिलेटेड टू व्हिच लिटरेरी एरा, तो एज ऑफ पो या एज ऑफ ऑगस्टन एज से ही ये बिलोंग करते हैं। तो ये तो कुछ रहा हमारा हिस्टोरिक बैकग्राउंड, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी हिस्टोरिक बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। हिस्ट्री एक बहुत व्यापक
क्षेत्र है, व्यापक सब्जेक्ट है, इसको जितना पढ़े उतना कम है। हम उतनी ही चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, जो मुझे लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है आप एडवर्ड एल्बर्ट, ऑक्सफोर्ड, विलियम जे लॉन्ग, जो भी पढ़ना चाहें आप उसको पढ़ें आराम से, वहां पे चीजें कवर करें। आगे हम देख लेते हैं व्हाट आर द नोटेबल राइटर्स एंड देयर वर्क। इसमें सिर्फ हम एक चीज कवर करके आज फिनिश करेंगे सेशन को, और बाकी का कल कवर करेंगे। इसमें इतनी चीजें खाली सिर्फ देख लें कि 4 व्हील नॉवेल्स है, इसमें कौन कौन थे। 4 व्हील नॉवेल्स में कौन कौन होता है? सैमुअल रिचर्डसन होते हैं, और कौन हो सकते हैं बताइए? हेनरी फील्डिंग है, हाँ हेनरी फील्डिंग है, और कौन है? और है शायद सोमलेट्टी है, सोमलेट्टी, जो भी इनको पढ़े आप। हाँ एक क्या है शायद इनकी है, एक मिनट, यस यम ओ डबल एल ई डबल टी, सोमलेट। और एक और है स्टर्न, लॉरेंस स्टर्न, लॉरेंस स्टर्न। ये जो है 4 ग्रेट जो 4 व्हील नॉवेलिस्ट हैं, ये पूछ लिया जाता है। इसमें इतना ही पूछ लिया जाएगा, पूछा जाने की उम्मीद है कि 4 व्हील नॉवेल में जो है कौन शामिल था, कौन शामिल नहीं था। तो 4 नाम याद रखने हैं हमको, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, जॉर्ज स्मॉल्टी और लॉरेंस स्टर्न। ये 4 नाम याद रखेंगे, 1 नंबर ये मान के चलो आने की उम्मीद रहती है। ये फेमस क्वेश्चन है, जनरली ये बनता है। तो आज के सेशन में जो है हम यहीं तक के लिटरेचर का रखेंगे, और आज जो है थोड़ा हम देर से क्लास को स्टार्ट किए, इसलिए इतना ही हो पाया। आगे क्या जो है हम अगले क्लास में हम कवर करते हैं, है ना? जी सुन रहे सर। हैं आप लोग? जी सर।